Namaste everyone. Welcome on the demo class on remedies. As I told you, this one is a demo class. I am going to just give some outlook to regarding the sessions which will start on 23rd and 24th. As guys, I told you, as many of you have a question, ki how astronumero remedies will work is that if someone is only working on a numerology, is that able to work on astronumeral remedies or not? Uh, I will say my answer in this case is yes. You can easily do the remedies if you know the numerology also. Why I am saying this is that uh, I do the predictions, I do the readings on the basis of Vedic numerology, Python numerology, Chaldean numerology, and Loshu grid also. And currently working on more on the different streams of numerology. So when I talk about the Vedic, so in that case there are many remedies which are based on the dasha system, antardasha system of person's life. Now your question will come, if you don't know about the dasha and antardasha system related to numerology, then how you get to know about the other remedies, right? So guys, we generally go to astrologers, we get to know about the dasha, we get to know about the antardasha during the time period through astrology. So when you know about your dasha antardasha system through astrology, or if you go through with the numerology, you get to know about the dasha system. So if when you have the remedies, you can easily do the remedies by your side. For an example, if someone's if I say Rahu Dasha is going on, generally Rahu Dasha gives a more problem, but sometimes it's like an up and down fall. राहु दशा पीपल को अप साइड भी लेके जाती एंड देन लोअर साइड भी लेकर के आती है. एंड इन राहु दशा द थिंग इज दैट पीपल गेट इनटू ऑपरेशन थिएटर ऑल्सो. पर्सन जो है वो ऑपरेशन थिएटर तक चला जाता है, उसके बॉडी पे कहीं ना कहीं कटमार्क आता ही आता है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या रेमेडी है कि राहु के इफेक्ट्स को कम किया जाए when it is in peak point, peak पर है. So there are 2-3 remedies. One is this. If you see, okay, my virtual background, you will not able to see. If you see, there is one black thread in my hand. So this thread is wear in the left hand of girls when the girl having Rahu Dasha, and if boy having Rahu Dasha, he can wear in right hand. But what measurement of this black thread? This black thread is the measurement of person's height. Means if I am wearing it, so it means this thread is of my height, my full height. मेरी full height का ये thread है. Then which day I wear it? I wear it on Wednesday. चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, वो वेनसडे को ये ब्लैक थ्रेड पहनेगा इन द पीरियड ऑफ राहु दशा. जब तक ये राहु दशा चलेगी, अगर चेंज भी करना है तो वेनसडे को चेंज करना है. और इस ये कहीं ऐसे प्लेस पे लाइक हॉस्पिटल या हम किसी के डिपार्ट होने पर अगर हम वहाँ जा कर के आ जाते हैं तो ये चेंज करना इम्पॉर्टेंट है. एंड if you see, I didn't wear the red मूली कलावा in my hand because black thread जो होता है ना, वो कलावा के साथ में नहीं पहना जाता है, which I tell about this in my नोट मैजिक क्लास. मैं नोट की जो क्लासेस देती हूँ उसके अंदर मैं बताती हूँ कि ये जो धागा है ब्लैक थ्रेड रेड थ्रेड के साथ में नहीं पहना जाता. बहुत जन पहन लेते हैं. पहले जब मुझे भी नहीं पता था, व्हेन आई डोंट नो अबाउट द नोट्स, आई ऑल्सो वेयर रेड एंड ब्लैक थ्रेड टुगेदर इन माई लेफ्ट हैंड. तो मैं ये नहीं पहनती. ऐसे ही सेम थिंग बॉय अगर पहनता है तो बॉय भी नहीं पहनेगा.
सेकेंडली, अगर आपने रेमेडीज़ वाला जो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उसके अंदर मैंने हत्था जोड़ी के बारे में बताया था, टू विन द कोर्ट केस। अगर आपका जेन्युइनली आपका लैंड से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपका केस चल रहा है, तो अगर आप हत्था जोड़ी की पूजा सिद्ध कराई भी अपने पॉकेट में डाल करके लेकर के जाते हो, इट्स कॉस्ट अराउंड 1100 to 1200 ही होता है इसका कॉस्ट। ये मध्य प्रदेश में बेसिकली ज़्यादा मिलती है। तो वो अगर आप लेकर के जाते हो तो आप के 99% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके फेवर में जो है जजमेंट आएगा। देन उसके बाद जो है, मैंने सॉल्ट से रिलेटेड रेमेडीज़ हैं, सॉल्ट की बात वगैरह है, सॉल्ट से मॉपिंग है। उसके अलावा भी और भी सॉल्ट से होता है नज़र दोष पर। अगर किसी पर्सन के नज़र दोष है, किसी बच्चे के नज़र दोष है, कोई उपाय अगर आप कुछ कहीं नहीं कर सकते हैं तो सॉल्ट तो सब जगह मिलेगा। अपने सॉल्ट को लीजिए, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज बच्चे के सर पे से राउंड करिए और 1 टाइम क्लॉकवाइज राउंड करिए और उसको पानी में जाकर के बहा दीजिए। सबसे बेस्ट रेमेडी है नज़र दोष उतारने की। अगर आपके खुद के ऊपर में भी है, सेम थिंग, आप अपने हाथ में लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स राउंड करिए, देन 1 टाइम क्लॉकवाइज राउंड करिए और उसको पानी में बहा दीजिए, नज़र दोष उतर जाएगा। ये आप किस टाइम पे कर सकते हैं? ये आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप ये इवनिंग टाइम पे करते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद होता है, जैसे मैंने बताया कि इस रेमेडीज़ वर्कशॉप में जॉब से रिलेटेड, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड काफ़ी सारे रेमेडीज़ रहेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रेमेडी शेयर करती हूँ रिगार्डिंग टेकिंग अ राइट डिसीजन। मेनी पीपल फेस कि राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे सारे इश्यूज आती है। तो आपने सुपारी सुनी होगी, पूजा में यूज़ होती है, साप्ती सुपारी। आप उसको लो, वेनेसडे को आप उसको गणेश जी के मंदिर में गणेश जी को चढ़ा करके आना है आपको। आप देखोगे 2-3 वेनेसडेज आप ही कंटिन्यू करोगे। अब देखो सुपारी की रेमेडी कितनी है, कितने रुपए की है, जस्ट 5 रुपये भी नहीं लगता एक सुपारी पे। आपने वो खरीदी और वही एक साथ ही 5-7 पीस घर पे ला करके रख दो पूजा घर के अंदर में, और फिर जब आप वेनेसडे आया, आपने जो है उसको गणेश जी को जा करके चढ़ा दिया। तो ये हुई सुपारी की। देन एक रेमेडी मैं बहुत ही अच्छी पावरफुल रेमेडी बताती हूँ। ये रिगार्डिंग आप जॉब भी कर सकते हो, ये रिगार्डिंग आप कोर्ट केस से रिलेटेड भी कर सकती हो, ये आप जो घर के अंदर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे रिलेटेड भी कर सकते हो। यह करना है आपको, लेकिन ये कंटिन्यू करना है, 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज, ऐसे ये कंटिन्यू करना है। और एकदम अर्ली मॉर्निंग 6 AM पे करना है। मीन्स क्या है, आपको लेमन लेना है, लेमन के 4 टुकड़े करने। कैसे करने हैं 4 टुकड़े? जो लेमन का अप साइड और लोअर साइड जो पार्ट आता है ना, वहाँ से आपको उसको 4 पीसेस करना है। जनरली हम लेमन को मिडल से काटते हैं, जो उसके बीच वाला पोर्शन भी कट होता है, नहीं, आपको लेमन को अप से डाउन में 4 पीसेस करने हैं। घर से 4 पीसेस करिए, करके लेके जाइए ठीक 6 बजे। मीन घर से जब 6 बजने में 1 या 2 मिनट बाकी हो तब बाहर निकलिए, एंड देन आप जाइए उस लेमन को लेकर के 4 क्रॉसिंग रोड्स जो आती है ना, चौरस्ता जिसको बोलते हैं, 4 क्रॉसिंग रोड्स बोलते हैं उसको, वहाँ जाइए और वहाँ पर उसको आप चारों डायरेक्शन में फेंकना है। मीन्स लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, सीधा घूमिए और सीधा अपने घर आ जाइए। उस वक्त अगर आपको कोई आवाज़ भी दे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। इसीलिए ये रेमेडी सुबह में करने की होती है। अगर ये आप शाम में करोगे तो शाम में क्या होता है, काफ़ी सारे क्राउड वगैरह मिलेगा तो आप इसको ईजिली नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हो तो आप इसको बहुत ईजिली कर पाओगे, आपको कोई पीछे से जनरली बैक में आवाज़ नहीं देगा। सेकेंड थिंग, आप सोचोगे कि आपका घर का रास्ता क्यों मैं उस साइड से वैसे करके बता रही हूँ, आपको वो क्रॉसिंग पर दोबारा उस वक्त जाना नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जाओ, 2-3 घंटे बाद जाओ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आधे घंटे के डिफरेंस में उस रास्ते पे दोबारा जाना नहीं है। मतलब आप सोचो कि आप सुबह में दूध लेने के लिए जा रहे हो, करते हुए चले जाओगे और दूध लेकर के वापस आ जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये करके घर वापस आना, फिर चाहे आप दूध लेने के लिए वापस चले जाओ, कोई इशू नहीं है। बहुत ही पावरफुल और इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये। अगर आप सैटरडे से शुरू करते हो
तो और भी ज़्यादा अच्छा है। सैटरडे शुरू करो, उस दिन कर लो 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज, एनी नंबर ऑफ डेज आप इसको कंटिन्यू मॉर्निंग में करो। आप देखोगे कि अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको इसको करने में रुकावट भी आएगी, आप इसको इजीली कर भी नहीं पाओगे। लेकिन आप देखोगे कि अ, ना प्रॉब्लम्स थोड़े कम है, जनरल नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, आप इसको इजीली कर पाओगे। और बच्चा आज की डेट में क्या होता है, चाइल्ड्स बहुत जो है ना वो हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं ड्यू टू लॉकडाउन, घर पे ही रहना, कहीं बाहर आना जाना नहीं। ऐसे के अंदर में ना आप बच्चे को जो है सुपारी लो और उसको एक सिल्वर पेंडेंट में पैक करवा दो। उसको ना केज पेंडेंट बोलते हैं, आप अमेज़न वगैरह पे देखोगे तो आपको मिलेगा। लेकिन वो जो मिलेगा ना उसके अंदर में बीट्स वगैरह मिलेंगे, उसके अंदर में सुपारी नहीं मिलेगी, तो ये आपको बनवाना पड़ेगा। इट्स कॉस्ट अराउंड 1000 रुपये के अंदर अंदर वो बन जाएगा। तो उसके अंदर में केज टाइप की बनवा करके उसके अंदर में सुपारी अंदर डलवा दो और फिर बच्चे को एज अ पेंडेंट पहना दो। आप देखोगे कि बच्चे का ये जो स्टडी के अंदर में प्रॉब्लम्स है, उसका जिदपन है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गया, वो पढ़ाई के ऊपर में फोकस होने लगेगा। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा कंसंट्रेशन पिरामिड आता है, दैट कॉस्ट इज ऑल्सो अराउंड 1200 to 1500 ही है उसकी कॉस्ट भी। बच्चे के स्टडी टेबल पे वो लगा दो, देखो कि बच्चे का धीरे धीरे स्टडीज़ के ऊपर में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है। उसके अलावा अगर कोई भी लर्नेड पर्सन है, लर्निंग में है, कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो एक स्विच मंत्र है, अंबिका अनादि निधाना अश्वरूधा अपराजिता। अंबिका अनादि निधाना अश्वरूधा अपराजिता। ये मंत्र की चैंटिंग 45 टाइम्स खुद कर लो बच्चे के बिहाफ में, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो। अगर बच्चा बड़ा है एंड एबल टू चांट, बच्चे को बोलो चांट करने के लिए, अपने साथ बैठा लो, 28 to 45 टाइम्स चांट कराओ। फिर धीरे धीरे देखो कि बच्चे को एक आदत हो गई है। उसके अलावा बच्चे को स्टडीज़ में वेल करने के लिए आप उससे गायत्री मंत्र का चांट ज़रूर करवाओ, चाहे मॉर्निंग में 1 टाइम ही चाहे गायत्री मंत्र का चांट करें सॉरी, लेकिन गायत्री मंत्र का चांट ज़रूर करें। उसके अलावा एक सबसे बेस्ट, हम जब मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो उठते ही हमारी आदत होती है कि हम फ़ोन को हाथ में लेते हैं, फ़ोन के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है, तो हम फ़ोन को ही हाथ में लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथ जोड़ने हैं, देन उसको ऐसे खोलना है। एंड एक मंत्र है, वो मैंने मंत्र पहले भी शेयर किया हुआ है, वो मंत्र मैं वापस से बताती हूँ। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। तो वो आपको अपने हाथ को इस तरीके से देखना है और उस मंत्र का चांट करना है। एकाग्र वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित विष्णु, प्रभाते कर दर्शन। मतलब क्या है, हमारे फिंगर्स के इस टिप पर लक्ष्मी जी वास करती है, मिडिल में सरस्वती जी वास करती है और यहाँ पर हमारे विष्णु जी वास करते हैं। तो एकाग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित विष्णु, प्रभाते कर दर्शनम। मीन्स सुबह पहले उठते ही आप अपने हाथों में भगवान का दर्शन कर रहे हो और प्रे करो उस वक्त, भगवान आपने मुझे ये दिन की शुरुआत दिखा करके शुक्रिया आपका, आपने मुझे आज का दिन दिखाया है, आपका शुक्रिया, मेरा दिन शुभ जाए और मेरे हाथों से सारे कार्य शुभ हों। ऐसा प्रे करके देन जब आप बेड से उतरते हो तो डायरेक्ट जो है आपको पैर नहीं रखना, अपने धरती माँ को प्रणाम करो, मीन्स टच द फ्लोर एंड प्रे करो एंड देन स्टेप आउट। वहाँ पर एक और चीज़ होती है कि आप अगर अपनी ब्रीथिंग को फील कर सकते हो। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि हमारी जो दोनों ब्रीथिंग नोस्ट्रिल्स है ना, वो नहीं चलती है एक टाइम पे। कोई एक बहुत ही फ्यू सेकेंड्स होता है जब हमारी दोनों ब्रीथिंग चल रही होती है, नहीं तो लेफ्ट या फिर राइट चल रही होती है। ये ध्यान दो कि जब आप मॉर्निंग में उठो तो आपकी कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है, मीन्स आप कौन सी नोज से सांस ले रहे हो।
आप जिस नोज से सांस ले रहे हो वही पैर पहले जमीन पे रखो। आप देखोगे जब आप ये हैबिट बना लेते हो, वैसे तो ये एक स्वर शास्त्र का पूरा प्रोसेस है, ब्रीथिंग प्रोसेस है, उसके अंदर में ये भी होता है कि कृष्ण पक्ष में कौन सा नोस्ट्रल चलना चाहिए, शुक्ल पक्ष में कौन सा चलना चाहिए, फिर शुक्ल पक्ष के 3 दिन कौन सा चलना चाहिए, कृष्ण पक्ष के पहले 3 दिन कौन सा चलना चाहिए, बाद के 3 दिन कौन सा चलना चाहिए। ये एक पूरा वो है, स्टडी प्रोसेस है। उसको अगर आप सीखते हो तो और ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जनरल में आप ये चीज़ फॉलो अप कर सकते हो कि आपकी कौन सी नोस्ट्रल चल रही है, आप वही पैर सबसे पहले आप ज़मीन पे रखो। आप देखो आपको वो दिन फिर रियलाइज़ करो कि आपको कैसा फील होता है, एंड यू विल फील द चेंज इन द 6 to 7 days इन योर सेल्फ। उसके अलावा अगर कोई रेमेडी मैं बताऊँ, पिकअप फेदर की एक रेमेडी बताती हूँ। पिकअप फेदर जो है ना, आप कोई थिंग आपकी ऐसी विश है कि जो फुलफिल नहीं हो रही है और वो सिर्फ आपसे रिलेटेड है, तो आप पिकॉक फेदर को ना अपने कपड़ों के बीच में रख दो। जहाँ आप कपड़े रखते हो उसको एक सेल्फिन पेपर में रख करके अपने कपड़ों के बीच में रख लो। एनी डे किसी भी दिन कर सकते हो। एंड देन अगर चाइल्ड की एडुकेशन के लिए करना है तो उसके बुक्स के बीच में रख दो। 2-3 तो पिकॉक फेदर लो, उसके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर में रख दो। मनी के लिए आप पिकॉक फेदर अपने पर्स के अंदर में रख सकते हो। मनी से रिलेटेड वैसे तो मैंने पर्स की काफ़ी रेमेडीज़ जो है ग्रुप में शेयर की भी है। एक बताती हूँ कि जो मनी वॉलेट जो हम यूज़ लेते हैं स्पेशली जेंट्स, उसमें बीच में ना छेद होता है। वो छेद वाले वॉलेट यूज़ नहीं लेनी चाहिए, लेदर की वॉलेट यूज़ नहीं लेनी चाहिए। यू कैन यूज़ द क्लोथ की वॉलेट आती है विदाउट छेद वाली, वो यूज़ में लो। देन कॉइन्स एंड नोट्स को साथ में मत रखो। करेंसी जो रुपए जो होते हैं पेपर वाले, उनको और कॉइन्स को साथ में मत रखो। इसका अलग है, एलिमेंट रिलेटेड थ्योरी है इसकी, इसलिए। देन ना इलायची और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, सिनेमन, उसको वेनसडे को अपने वॉलेट में डाल दो। एंड देखोगे थोड़े से 3 दिन बाद जो है, थोड़े टाइम के बाद में जैसे ही वो ख़राब हो जाएगा, इलायची ड्राई हो जाएगी और दालचीनी टूट जाएगी, अजीब सी हो जाएगी, देन अगेन रिप्लेस कर दो। पुराने वाले को आप डिस्कार्ड कर दो, डस्टबिन में फेंक दो और नया उसके अंदर में डाल दो। इट्स ऑल्सो अ गुड, वेरी गुड रेमेडी। ये भी आप कर सकते हो टू इंक्रीज द वेल्थ। उसके अलावा आप क्लोथ्स भी रख सकते हो अपने वॉलेट के अंदर में। देन एक है कि लाल कपड़े के अंदर में, छोटा लाल कपड़ा ले लो, उसके अंदर में 24 राइस के दाने जो होते हैं, रॉ राइस, वो कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसको रेड कपड़े में बांधो और अपने वॉलेट में रख दो। इट इंक्रीज वेल्थ। आपको ना हाथ में जो है पैसे आएंगे, आप देखोगे आपकी पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगी। दीज आर सब जनरल रेमेडीज़। ऐसे ही काफ़ी सारी रेमेडीज़ जो है वो इस रेमेडीज़ के वर्कशॉप में, 2 दिन का वर्कशॉप है, उसमें शेयर होगी। एक और अच्छी केसर की रेमेडीज़ बताती हूँ कि ना जो 3 तारीख को बॉर्न है, जो 3 तारीख को बॉर्न है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 भी 1 आता है, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 मिसिंग भी है, दोनों ही केस में ये रेमेडी आज मैंने शायद ग्रुप में शेयर भी की थी। केसर का तिलक एवरी थर्सडे लगाओ। पूरे वीक में नहीं लगाना, खाली थर्सडे को केसर का तिलक, केसर की 2-3 पत्तियाँ एक छोटे डब्बे में डाल करके, हल्का सा पानी डाल करके फ्रिज में रख दो, खराब नहीं होगी। और एवरी थर्सडे को उसको हल्का सा करो और अपने माथे पे लगा लो। बहुत अच्छी रेमेडी है थर्सडे का, मीन्स बृहस्पति लाइफ के अंदर में इंक्रीज करने के लिए। अब ये रेमेडी जो है, फिर क्वेश्चन उठेगा क्या नंबर 6 बॉन्ड वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इसके अंदर में कोई इशू नहीं है। नंबर 6 के बॉन्ड हैं, अगर 3 मिसिंग है, ये आप कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि आपका डेस्टिनी नंबर कौन सा है उसके ऊपर में। लेकिन इफ़ यू हैविंग अ मिसिंग 3, तो आप ये रेमेडी बहुत इजीली कर सकते हो। और जिनके तो 3 मिसिंग है तो उनको तो ये करना ही चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ, नंबर 3 मिसिंग वालों को ना
कुछ डोनेशंस वगैरह बना देते हैं कि बुक्स वगैरह स्कूल में जाके डोनेट कर दो। अम, तो ना डोनेशन नहीं करो आप, बुक्स ले जाके किसी को मत दो। आप वहाँ से जो है गुरु बृहस्पति की पावर नहीं ले रहे हो, आप वो दे रहे हो। बुक्स देना मतलब होता है कि नॉलेज का दान करना। तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, किसी चाइल्ड की एडुकेशन स्पॉन्सर कर दो। मतलब कोई गरीब बच्चा है, पढ़ नहीं सकता है, उसके पढ़ाई के पैसे आप पे कर दो बुक्स डोनेशन की जगह। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है जुपिटर स्ट्रॉन्ग करने की। अब मैं आप लोगों का क्वेश्चन ले लेती हूँ। आई विल टेक क्वेश्चन ओनली 10 मिनट्स, उसके बाद मैं क्वेश्चंस नहीं लूँगी। तो रेज योर हैंड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है। उससे पहले मैं बता दूँ, मेरा वर्कशॉप जो है 2 दिन का वर्कशॉप है, 23rd एंड 24th का। अगर 23rd एंड 24th में मेरी रेमेडीज़ कंप्लीट नहीं होती है, मोर देन 1000 रेमेडीज, छोटे छोटे काफ़ी सारे रहेंगे। अगर 2 दिन में वर्कशॉप कंप्लीट नहीं होता है तो वर्कशॉप मंडे को अगेन रहेगा। अगर 2 दिन में वर्कशॉप कंप्लीट हो जाता है तो मंडे को वर्कशॉप नहीं रहेगा। इसकी फीस जो है मेरी 2499 है। पेटीएम नंबर, जीपे नंबर दोनों, जो व्हाट्सएप वाला नंबर है 6291612203, दोनों वही है। अब जो यस अशोक जी, मैंने आपको आज टू अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ सर कैमरा यस, ऑन कर लीजिएगा। पॉइंट मेरा ये है कि जैसे हमने बोला कि 3 नंबर मिसिंग, और 3 नंबर जिसको, जैसे 3 नंबर वाला आपने रहने की बताया और जी, उसको देखने कहा, तो ये जिसके पास डबल 3 हो या 3 बार 3 आया हो वो भी कर उनको सर सकता है। डोनेशन, नहीं नहीं सर, जिनके पास डबल 3 या 3 बार 3 है उनको ये रेमेडी नहीं करनी चाहिए। और जो 3 बॉन्ड नहीं है लेकिन फिर भी ग्रिड में 3 प्रेजेंट है तो भी ये रेमेडी नहीं करने की है। बिकॉज मैंने सुना गुरु ज्यादा स्ट्रांग हो तो भी परेशान करता है। तो इसीलिए आई तो मैंने डोंट नो बता बट दिया ना। मैंने इसीलिए देखिए आपका सिंपल एग्जांपल दे दिया। जब 3 एक बार से ज़्यादा आ रहा है तो डोनेशन करना है आपको। और 3 एक ही बार आ रहा है लेकिन आप 3 बॉन्ड नहीं हो तो आपको ये रेमेडी नहीं करनी है। ओके 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 मैडम। एक एक और विजय लक्ष्मी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। या मैम, लाइक सपोज आई एम प्री बॉर्न, मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 है, 12 अप्रैल है, तो मतलब मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गई थी करना है कि नहीं करना, वो केसर वाला उपाय जो बताया आपने। मैम आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 12 अप्रैल 1975, तो वो जो टोटल है मैम तो आपको उसमें। करना चाहिए। मैम आपको करना चाहिए। ओके ओके। मान्या जी, अगर 3 डेस्टिनी नंबर भी है तो भी करना चाहिए। लकी चावला जी, क्लासेस वैसे तो जूम पर ही है लेकिन रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी नेक्स्ट 10 डेज के लिए। मीन्स आप रिकॉर्डिंग नेक्स्ट 10 डेज तक देख सकते हो। जी सविंदर जी, आपका क्वेश्चन। Anyone have any else question? You can ask. नहीं, क्या होता है ना, कभी कभी आज की डेट में मैंने एक चीज़ बहुत देखी है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर में काफ़ी सारी रेमेडीज़ बताई जाती है। अगर आपने, काफ़ी सारे जन हैं जो रेमेडीज़ बताते हैं लेकिन वहाँ पर वो ये नहीं बताते हैं कि डूज और डोंट्स क्या है। लाइक जैसे यहाँ पे सिंपली बताती हूँ कि किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कि 3 अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आपको डोनेशन करना है, लेकिन अगर 3 एक ही बार है तो आप वो डोनेशन करते हो तो आप वो उसकी एनर्जी ले नहीं रहे हो। लोग जो है 3 मिसिंग है तो उसके अंदर में डोनेशन बता देते हैं, 1 मिसिंग है डोनेशन बता देते हैं। लेकिन क्यों करोगे आप वहाँ पे डोनेशन, ये नहीं बताते हैं। क्या चीज़ का डोनेशन करोगे ये नहीं बताते हैं। ये सारी चीज़ें मिस्ड हो जाती है। जी अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। मैम, अगर किसी को डबल 7 है, उसका जी, डेस्टिनी 7 है एंड 2 बार 7 आया हुआ है, अगर न्यूमरोलॉजी की चार्ट में 2 बार 7 है उसके पास, जी। तो हम ऐसा बोलते हैं कि 7 2 बार आया तो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो
इसका इम्पैक्ट कम करने के लिए हम क्या करा सकते हैं? मतलब यूजुअली हम न्यूमरोलॉजी रेमेडीज में ऐसा बोलते हैं कि भाई डॉग को बिस्किट खिला दीजिए, या फिर इवनिंग के टाइम पे, या फिर जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि उनको गणपति का जाप करना चाहिए। और कोई रेमेडी है अगर 7 डबल बार है और वो इफेक्ट सर कर रहा है? सर 7 अगर डबल बार है तो रेमेडी ऑब्वियसली है, वो मैं यहाँ पे ओपनली नहीं बता सकती, क्योंकि रेमेडीज़ का आप लोगों को एक और चीज़ बहुत अच्छा टिप दे देती हूँ। अगर आप लोग इस फील्ड में करते हो तो रेमेडीज़ कभी भी थर्ड पर्सन, अगर आप डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड अपने रेमेडीज़ वगैरह ले रहे हो तो कभी भी थर्ड पर्सन वो रेमेडीज़ नहीं सुननी चाहिए, इसलिए वो रेमेडीज़ वर्क नहीं करती है। आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे कि लोग सोशल मीडिया पर रेमेडीज़ पूछते हैं, राइट, काफ़ी जन रेमेडीज़ बताते भी हैं, देन वो कहते हैं ये रेमेडीज़ तो वर्क ही नहीं की। भाई करेगी क्यों? सोशल मीडिया पे इतने सारे जनों ने वो रेमेडीज़ को पढ़ा है। रेमेडीज़ हमेशा दो लोगों के बीच में ही होनी चाहिए, जिसने दी, जिसको दी। थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट होगा, रेमेडीज़ वर्क नहीं करेगी। तो ये मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ कि क्या कैसे डोनेशंस करना चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे इसलिए मैंने बता दिया था, और जो कुछ जनरल रेमेडीज़ बताई थी कि ये कर दो वो कर दो, वो मैं इजीली ओपनली बता सकती हूँ, इसलिए मैंने बताया था। Anyone else having any question? प्रांजल जी आप क्या पूछना चाहते हैं? व्हेन आई गेट जॉब, मैं यहाँ पे ना प्रेडिक्शन की नई क्लास ले रही हूँ, जो मैं ना प्रेडिक्शन कर दूंगी। यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप लोगों को रेमेडीज वर्कशॉप से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हो, आई विल क्लियर दैट। अपने हैंड रेज करिए, आई विल अनम्यूट, तब आप लोग पूछ पाओगे। जी उषा राय जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैम जैसे आपने जो रेमेडी बताई, जी कोई भी रेमेडी, जैसे आपने कहा कि रेमेडी दो लोगों के बीच में होती है, लेने जी वाले और करने वाले के। मैम अगर जैसे बच्चे हैं, बाहर हैं और वो रेमेडी नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जगह पे उनके पेरेंट्स कर सकते हैं क्या? सर कुछ रेमेडीज मैम कुछ रेमेडीज पेरेंट्स कर सकते हैं, एंड बच्चों की रेमेडीज पेरेंट्स को इजीली बताई जाती है। ओके बच्चों के लिए अगर कोई रेमेडीज पूछ रहा है या पेरेंट्स के लिए कोई बच्चा रेमेडीज पूछ रहा है तो उस केस में बताई जा सकती है, क्योंकि ये ब्लड कनेक्शन है। ओके और कुछ हद तक की रेमेडीज होती है कि बच्चों के बिहाफ में पेरेंट्स कर सकते, पेरेंट्स के बिहाफ में बच्चे कर सकते, लेकिन सारी नहीं कर सकते। ओके मैम, जी क्योंकि कई बार कई चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं या बच्चे बाहर हैं और जी जी कुछ मंदिर की रेमेडी है या जो भी है, मतलब तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर किड्स टू डू इट दो दे आर ग्रोन अप। हम्म। तो उस केस में मतलब पेरेंट्स ओनली कैन डू इट। यस तो यस इज इट डेफिनेटली। पॉसिबल? राइट, जी थैंक जी यू मैम। जी सुषमा जी, आपने कुछ किया था हैंड रेज या फिर क्या है? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। वेट, गाइस पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन मत करिएगा, मैं पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगी। सुषमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी हेलो। जी जी हाँ बोलिए। मैम, ये जो 7 पीस आपने सुपारी के बताए वेडनेसडे को गणेश जी को चढ़ाने के लिए, जी ये सिंगल सुपारी चढ़ानी है हर जी जी वेडनेसडे? सिंगल, नहीं जी ये किस जी पर्पज के सिंगल लिए बताई सुपारी। थी आपने? ये मैम अगर हम ये प्रॉपर किस लिए? डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसके लिए। अच्छा ठीक जी है। जी सर, ओके हत्ता मैडम, जोड़ी के लिए थैंक आप यू। मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। आई विल गिव द सेलर डिटेल इफ आई हैव, आई थिंक आई हैव सेलर डिटेल। अगर आप लोगों का अब और किसी का क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। पेमेंट डिटेल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वैसे तो आप लोगों के पास में है भी, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वही ही मेरा पेमेंट डिटेल्स नंबर है, जीपे या
पेटीएम, जो भी करना चाहें। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बैंक डिटेल्स चाहिए तो आई विल शेयर द बैंक डिटेल्स ऑल्सो। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसके रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी फॉर 10 डेज, मीन्स 23 की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट 10 डेज तक रहेगी आप लोगों के पास में, 24 की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट 10 डेज तक रहेगी आप लोगों के पास में। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे मैंने आज ग्रुप के अंदर में हर्ब्स से रिलेटेड पोस्ट डाली थी कि हर्ब्स से रिलेटेड इतने मोर देन 25 हर्ब्स हैं जिनकी रेमेडीज़ भी रहेंगी, वो कम्प्लीटली PDF में रहेंगी। वो मैं डिक्टेट नहीं करूँगी क्योंकि मैं 1000 से भी ज़्यादा रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ जो 2 दिन के क्लास में पॉसिबल नहीं है। तो कुछ पार्ट्स जो हैं वो पूरे कम्प्लीटली आप लोगों को PDF में ही शेयर होंगे। उसमें से हर्ब्स की जो रेमेडी है वो PDF में शेयर होगी। जो मैंने नोट से रिलेटेड रेमेडी बताई कि हमें जो नोट्स हम बांधते हैं हाथों के अंदर में, जो धागा रक्षा सूत्र वगैरह पहनते हैं, उसके डिफरेंट रक्षा सूत्र के मतलब हैं, रक्षा सूत्र बनाए जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, वो सारे रक्षा सूत्र की जो रेमेडी है कि जो PDF है वो शेयर होगी एज इट इज़ PDF। अगर उसके अंदर में कोई डाउट होगा तो वो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछोगे, वो क्लियर कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो है काफ़ी सारी रेमेडीज़ जो है आई एम ट्राइंग टू डू गिव यू बाय PDF ओनली, वो मैं डिक्टेट ना करूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो तो आप लोगों को 10 डेज़ के लिए मिल ही रहा है। अगर कोई मिस होता भी है तो आप लोग वीडियो देख करके आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं सेशन ओवर करती हूँ। जो भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप पे पूछिएगा। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग।